हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। ये यूजीसी नेट फॉरेंसिक साइंस पेपर 2 जून 2023 का क्वेश्चन पेपर है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। फॉरेंसिक साइंस के आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं यूजीसी नेट पेपर 2 में। पेपर 2 में 100 क्वेश्चन, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। हमने छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ताकि आप 100 क्वेश्चंस कवर कर लो इजीली और एक बार में आपको बर्डन भी फील ना हो। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61। इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स द लेटर स्पेसिंग, लेटर सेलेक्शन, बेसिक अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग एंड रिबन एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय। तो ये सारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के बारे में हम बात कर रहे हैं। जितने भी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स होते हैं उनमें लेटर स्पेसिंग, लेटर सिलेक्शन, बेसिक अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, रिबन एक्शन किससे कंट्रोल्ड होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, प्लगर, सोलेनॉइड्स, हैंडल रॉड, इलेक्ट्रॉनिक मोटर एक्सेट्रा। यहाँ पे आपको कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। In electronic typewriters, the control of various function is distributed among different components and machines. कौन सा microprocessor की हम बात करें, so it is an electronic typewriter. The microprocessor in an electronic typewriter plays a role in controlling various functions, including letter selection, basic alignment, possibly letter spacing also. So इसको हमें include करना चाहिए because microprocessor is important and it looks like it plays a very important role. Plugger are typically used for individual key press and are involved in letter selection. Solenoids are mechanical devices that is used for various functions in electronic typewriters, including controlling the movement of type bars, operand elements, line spacing, and sometimes letter selection. So I think we are going to include that as well. Handle rods are not typically used for the function that is mentioned, eliminate कर देते हैं. Electronic motors are not commonly used for ribbon action. इसको भी eliminate हम कर देते हैं. Now, based on the function which is mentioned above, the correct answer is A, B, and D only. Wait a minute. A, B, D तो नहीं होगा because D हैंडल रॉड यूज़ नहीं होता ना फंक्शन जो भी हमने मेंशन करा उन फंक्शंस के लिए. सो D को एलिमिनेट करो. आई थिंक देयर इज सम इशू विद द आंसर. हम इसको रिकरेक्ट करेंगे. जस्ट कैंसिल दिस. ठीक है, क्या क्या सही है. C और E आपका इज तो इसी वजह से हम A और C जिसमें होगा उसको चूज करेंगे. A C एंड E. A C, इसमें भी A और C है और इसमें भी A और C है. सो B और E में हमें देखना है B एंड E. सो B को इंक्लूड कर लो बिकॉज दिस इज typically used for individual key press and are involved in letter selection. लेटर सेलेक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो लेटर स्पेसिंग, लेटर सिलेक्शन के लिए यहाँ पे हमने ऑलरेडी मेंशन कराई है क्वेश्चन में. सो द करेक्ट आंसर हियर वुड बी A, B and C. A, B and C. Yes. A, B and C only will be the correct answer. इसको ही आप correct mention करोगे. Okay. So let's move to the next question. Question number 62. Read the following statement. In hand movement, the letters are made almost entirely by the action of the thumb and the first and second finger of the hand. ठीक है. Alignment in hand movement of writing is very uneven and many words may have unword tender. Next, illegible, scratchy, angular, rapid writings are produced by hand movement. In hand movement, the connections at the top and bottom of letters are very narrow and angular. The hand movement gives complete letter freedom. तो hand movement से related question है. इसमें से
आपको करेक्ट कॉम्बिनेशन चूज़ करना है। एक एक करके सारे ऑप्शंस हम देखते हैं। हैंड मूवमेंट की अगर हम बात करें, सो इन हैंड मूवमेंट लेटर्स आर मेड ऑलमोस्ट इंटायरली बाय द एक्शन ऑफ थंब एंड फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर्स ऑफ द hand. Now this statement describe the movement of specific finger जैसे कि thumb और first और second finger. In hand movement writing this is accurate. ठीक है, नेक्स्ट देख लो, अलाइनमेंट ऑफ द हैंड मूवमेंट of writing is very uneven and many words may have been unword tendency. This statement suggests that hand movement writing can result in uneven alignment and upward slanting of words, which is accurate. So इसको भी B को भी आप correct मानो. C क्या कह रहा है? Illegible, scratchy, angular and rapid writings are produced by hand movement. So now this system characterizes the quality of handwriting which is produced by hand movement, which is accurate. तो C भी accurate है. In hand movement, the connection at the top and bottom of letters are very narrow and angular. This statement discusses the narrow and angular connection at the top and bottom of the letter of the hand movement, which is accurate. The hand movement gives complete lateral freedom, जो कि accurate है of course. Now based on the accuracy of the statement, correct answer हम A D E को मान लेते हैं because these statements collectively describe various aspects of handwriting which is produced by the hand movement. A D and E only. A D and E only. ठीक है, ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट. तो इस वजह से हमने एक मोस्ट पॉसिबल करेक्ट ऑप्शन चूज करा है which is A, D and E only. Let's move to the next question. Question number 63. Which of the following considered unnatural sexual offenses? So यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं जैसे कि ट्राइबैडिज्म, बेसिटैलिटी, सोडोमी, इंसेस्ट एंड स्टॉकिंग. तो इसमें से आपको चूज करना है. इसको तो आप absolutely eliminate कर दो because stalking is not considered as unnatural sex offenses. So जिसमें जिसमें E है आप इसको eliminate कर दो, ये eliminate कर दो, ये भी eliminate कर दो. It is ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4. इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होने वाला है. सो लेट्स सी दी करेक्ट आंसर. A, B and C. A, B and C is the correct option for this question. A, B and C. ठीक है, incest is not considered as unnatural I guess. इस वजह से incest को eliminate कर दिया है. ठीक है, सो यहाँ पे आप इनकी, अच्छा कई बारी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि आपको ये नेम्स दे दिए जाएंगे और इसके एक्सप्लेनेशन शफल करके मैच द फॉलोइंग में भी आए हुए हैं ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में. तो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट. तो ये टर्मिनोलॉजीज क्लियर रखो. ठीक है, ये आप गो थ्रू कर सकते हो. इट इज़ गिवन इन दिस टेबल. ओके, कि कौन कौन से अननेचुरल सेक्स ऑफेंसेस की कैटेगरी में आते हैं. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 64. बिफोर रीडिंग क्वेश्चन नंबर 64, लेट मी रिमाइंड यू ऑल दैट वी हैव ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस फॉर UGC नेट फॉरेंसिक साइंस. सो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वी हैव टू टाइप ऑफ कोर्सेज, वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, लाइव लेक्चर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियोस नहीं मिलेंगी. आपको सॉल्व पेपर्स मिलेंगे बट उनका डिस्कशन वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगा. इसके अलावा सारी चीज़ें अवेलेबल है स्टडी मटेरियल कोर्स में भी. सारे PDFs, यूनिट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर, सॉल्व PDF आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल कोर्स में. वीडियो लेक्चर कोर्स में आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी. आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, PDF नोट्स आपको मिलेगा इंक्लूडिंग पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ. यूनिट वाइज टेस्ट, तो पेपर 1 में भी 10 यूनिट्स है, पेपर 2 में भी 10 यूनिट्स है. इन सारी की सारी यूनिट्स के आपको यूनिट वाइज टेस्ट मिलेंगे. 150 क्वेश्चंस का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा क्योंकि एग्जाम में भी 150 क्वेश्चंस ही आते हैं UGC नेट में. 50 क्वेश्चन पेपर 1 के, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के. 10 ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी मिलेगा और उसका डिस्कशन भी मिलेगा. ये सारी चीज़ें अवेलेबल है हमारे ऑफिशियल ऐप पे. इफ़ यू आर प्लानिंग टू क्रैक अपकमिंग UGC नेट एग्जाम साइकिल एंड JRF आप क्लियर करना चाहते हैं, सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन आर अमेजिंग कोचिंग क्लासेस फॉर UGC नेट JRF पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस एंड कंप्लीट UGC नेट की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं विद अस. सो इफ़ इंटरेस्टेड यू गाइस कैन जॉइन दी क्लासेस. और इसकी जो लिंक है, ऐप की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड
डाउनलोड कर सकते हैं एंड स्टोर पे क्लिक करके क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. Okay, let's move to next question. Question number 64. Which of the following constitute major applications of forensic entomology? So forensic entomology is the study of insects to get to know various important details from the corpse. Option A, estimate the post-mortem interval in suspicious death cases, determination of place of death, identification of areas of anti-perimortem trauma on the body, determination of age at that time of death, determination of ethnic affiliation of that deceased person. यहाँ पे कुछ करेक्ट ऑप्शंस हैं. तो एंटोमोलॉजी से हम क्या कर सकते हैं, पोस्टमार्टम इंटरवल पता कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लेस ऑफ डेथ पता कर सकते हैं. सो ए एंड बी इज इंक्लूडेड. तो ए और बी किस में है, ए बी इसमें साथ में है, ए बी इसमें साथ है, तो पॉसिबल ये दोनों आंसर्स हो सकते हैं. Now, estimation of postmortem interval in suspicious death, forensic entomology can use life stages and activity of insects found on the corpse to estimate the time since death, which is a crucial aspect of many investigations. Determination of place of death, entomology may be used to help establish where death occurred between on the type of insects present in their डिस्ट्रीब्यूशन. तो हो सकता है किसी एक यूनिक लोकेशन पे किसी एक यूनिक तरीके के इंसेक्ट्स भी मिले, तो इस वजह से प्लेस ऑफ डेथ भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है. थर्ड क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज ऑफ एंटी पेरीमोर्टम ट्रॉमा ऑन द बॉडी. While forensic entomology primarily deals with insects, it can indirectly assist in identifying areas of trauma on the body by providing information about time of death. ठीक है, determining the age at the time of death. Forensic entomology can help estimate postmortem interval, which in turn can provide clues about age of the disease at the time. Determination of ethnic affiliation of the disease. Forensic entomology not typically used for determine the ethnic affiliation, तो इसको हम eliminate कर रहे हैं. So based on the major application हम क्या यूज़ करेंगे, the most appropriate answer, ये तो हो ही नहीं सकता, E को eliminate करो, this is something wrong. तो based on the correct answer, okay, ethnic affiliation को eliminate कर दो, ये तो हम नहीं ही करते हैं, इसको एलिमिनेट कर दो. ओके, एज ऑफ डेथ, एज एट द टाइम ऑफ, ये भी एलिमिनेट कर दो. डी को भी एलिमिनेट करो और ई को भी एलिमिनेट करो, क्योंकि एज हम अगर कोई और डिटेल्स आपको नहीं मिल रही तो एज हम डिटरमाइन करने की कोशिश करेंगे, बट इट्स नॉट स्पेसिफिक टू डिटरमाइन द एज. Okay, so the most correct answer is A, B and C. A, B and C. A, B and C, third. So यही correct answer है. Please recorrect this. Okay. Next we have question number 65. Bite mark helps in personal identification using which of these types of evidences? Nasal mucus, saliva, teeth marks, lip print and DNA. So DNA include कर लो, teeth marks include कर लो, saliva include कर लो. Let's see BCE अगर option होगा, so BCE is the correct option. ठीक है, क्योंकि अगर कोई किसी को बाइट करता है तो सलाइवा सैंपल आ जाएगा, टीथ मार्क्स भी आएंगे जिसे हम बाइट मार्क कहते हैं, और सलाइवा की वजह से डीएनए भी. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 66, विच इज मैच ऑफ द फॉलोइंग. सो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहा है. इधर टाइप ऑफ एविडेंस इस लिस्ट में है और इसमें एक्सप्लेनेशन है. सो लेट्स मूव टू द करेक्ट आंसर ओनली. सो जो रियल एविडेंस है, इट इज़ फिजिकल इन नेचर एंड इन्वॉल्व इन सम स्टेज ऑफ क्राइम. टेस्टिमोनियल एविडेंस थर्ड पे जाके मैच करेगा. विटनेस अंडर ओथ गिविंग स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट. थर्ड, demonstrated evidence. This is the evidence which is used during the testimony of a witness. Here's evidence, second-hand information on an overheard comment. So this will be the correct matching. Let's move to the next question. Question number 67. Again, match the following. So correct matching हम देख लेते हैं. Distillation is a difference in volatility of compounds. Chromatography, difference in rate of movement of a solute in a stationary phase and a mobile phase. Electrophoresis,
difference in migration rate of charged species in an electric field. Extraction, it is difference in solubility in two immiscible liquids. हमेशा मैच द फॉलोइंग में बहुत ही ज़्यादा ईजी होते हैं. अगर आपने 2 से 3 चीज़ें मैच कर ली या 2 भी चीज़ें मैच कर ली तो कॉम्बिनेशन देख के आपको करेक्ट आंसर पता लग जाता है. Okay, let's move to the next question. Question number 68. Let's move to the correct answer only. NMR, nuclear magnetic resonance, that includes structure of chemical species. आप NMR से structural species का structure पता कर सकते हो. I mean species, chemical species का structure पता कर सकते हो. Then we have atomic absorption spectroscopy. Molecular absorption spectroscopy भी से कहते हो. UV visible spectroscopy is a separation of charged analytes using high voltage electrophoresis. CZE, that is capillary zone electrophoresis, that in that sample is nebulized before analysis. Wait a minute. हाँ, यहाँ पे भी मिस्टेक है. लेट मी करेक्ट दिस. देखो मैंने बोला ना, आप अगर एक या दो भी करेक्ट कर लेते हो. सो देखो जो आस है, आस में क्या होता है, सैंपल नेबुलाइज कर दिया जाता है एनालिसिस के पहले. सो बी को आप यहाँ पे लिखो बी. इसमें करेक्ट आंसर बी आएगा. और जो यूवी विजिबल है, मॉलिक्यूलर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो सेपरेशन ऑफ चार्ज एनालाइट्स हैं, जो हाई वोल्टेज में आएगा वो इलेक्ट्रोफोरेसिस में आएगा. सो ए 1 2 3, बी, बी इज 2, सी के सामने होगा व्हाट. नो वेट अ मिनट, थोड़ा सा मैसअप कर दिया मैंने. ए के सामने तो थर्ड रहेगा. ए इज करेक्ट. बी includes 1. C, high voltage, is 4. D is capillary zone electrophoresis, have 2. So ये होगा A 3, B 1, C 4 and D 2. C 4 and D 2. This is the correct answer. A 3, B 1, C 4, D 2. ये करेक्ट आंसर है. देखो यहाँ पे जो थोड़ी सी मिस्टेक थी वो मैंने कैसे क्लियर करी. राइट. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इलेक्ट्रोफोरेसिस में चार्ज पार्टिकल्स ही मूव करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर रहे हैं. सो दिस इज कैपिलरी जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस. सेपरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हाई वोल्टेज में हो रहा है. इलेक्ट्रोफोरेसिस में इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस पे ही सेपरेशन होता है. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाले में हमेशा सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज. आस में क्या होता है, अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा तो आपको पता होगा कि सैंपल को नेबुलाइज करा जाता है बिफोर द एनालिसिस. ठीक है. यूवी विजिबल में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलर अब्जॉर्प्शन है वो होता है यूवी रीजन में. तो इससे आप करेक्ट आंसर पता करते हो. सो दैट इज द करेक्ट मैचिंग. राइट. इस तरीके से आप करेक्ट मैचिंग कर सकते हो. कभी कभी क्या होता है, जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं, आई मीन जब भी सॉल्विंग चल रही होती है, समटाइम्स जो हमारा एप्लीकेशन है जब भी बनाया जा रहा होता है तो वो मेसअप हो जाता है. ये ऑप्शन उधर चला गया, वो ऑप्शन उधर चला गया. इसी वजह से आपने कई सारी मिस्टेक्स इस पीडीएफ में देखी होगी जिसको मैंने आपको रिकरेक्ट करवाया है. ठीक है. और वो रिकरेक्शन आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से कर सकते हो, जो कि आपको सिलेबस कवर करने से मिलेगी. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 69. लेट्स मूव टू द करेक्ट आंसर, पॉसिबल करेक्ट आंसर. डबल डिफ्यूजन क्या है. ओके, डबल डिफ्यूजन, आयरन ट्रैप, क्वाड्रपोल, टाइम ऑफ फ्लाइट. ये भी हम ढंग से देख लेते हैं. व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, व्हाट इज क्वाड्रपोल. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोकसिंग फॉलोड बाय मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्शन. स्टोरेज ऑफ आयंस in space defined by ring and end cap electrodes. Iron motion or in DC and radio frequency fields. Time of flight, equal kinetic energy ions enter the drift tube. ठीक है. सो आई थिंक दिस इज द पॉसिबल करेक्ट आंसर. ठीक है, दिस इज द पॉसिबल करेक्ट आंसर. Okay, so let's move to the next question. Question number 70, which includes acid phosphatase,
सीमेन एनालिसिस के लिए, जैफ रिएक्शन यूरिन के लिए, एल्डमन टेस्ट फीसिस के लिए, कैसलमेयर टेस्ट ब्लड के लिए. सो दिस इज द करेक्ट पॉसिबल मैच फॉर क्वेश्चन नंबर 70. सो ओके, सो हमने 10 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं. सो आफ्टर 10 क्वेश्चंस वी एंड द वीडियो. सो लेट्स end the video here so that ये वीडियो छोटी रहे and आप जल्दी जल्दी ये कवर कर सको. In the next video we will start with question number 71. If you guys are interested to join our classes, it is available in our official application की link description में. If you want to text or talk to us, you can text us in WhatsApp support number आपको description में मिल जाएगा. So thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye bye.